بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے بعد کا واقعہ بتانے والے ہیں کہ آپ کو شہید کرنے کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کے ساتھ کیا کیا اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا اور آپ کے خیموں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو دوستو، ان تمام تر چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ دوستو، نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر ان ظالموں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکناچور بھی کر دیا۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے اور تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں کے سروں سے بھی چادریں چھین لی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرات ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کی تمام مقتولین کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین اور جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہے، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کی ایک سپاہی کا بیان ہے کہ حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ آپ پر اللہ اور ملائکہ اور مقربین کا درود و سلام ہو، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہے، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا میں یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلے بنی اسد جو قریب کے گاؤں میں رہنے والا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو جمع کیا اور دفن کر دیا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن یزید کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا۔ دوستو، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں اور دانتوں کو ٹھوکریں دینے لگا۔ بوڑھے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا کہ چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنے انہی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ پھر زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو
अपना हाकिम बना लिया, जो अच्छों को कत्ल कर रहा है और बुरों को गुलाम बना रहा है। तुमने जिल्लत को गंवारा कर लिया, और जो जिल्लत को गंवारा करे उस पर खुदा की मार हो। उसके बाद ऐलान हुआ कि लोग बड़ी मस्जिद में जमा हो जाए। जब बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो इब्न ज़ियाद बदनिहाद मस्जिद में गया और मिंबर पर खड़े होकर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिसने हक और अहले हक की मदद की और अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया और उनके साथियों को कामयाबी अता फरमाई और उनको फतह नुसरत से सरफराज फरमाया। और माज़अल्लाह किज़ाब इब्न किज़ाब हुसैन इब्न अली और उनके गिरोह को शिकस्त दी और उनको हलाक किया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जब उस बदबख्त ने हजरत इमाम हुसैन और उनके वालिद गरामी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को किज़ाब कहा तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे, दोनों आँखों से माजूर थे और सारा दिन जिक्र फिक्र और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गुजारते थे, वह इब्न ज़ियाद की गुस्ताखी को बर्दाश्त न कर सके और बेताब होकर खड़े हो गए और फरते गज़ब से कांपते हुए फरमाया कि ऐ इब्न मरजाना, तू ही किज़ाब है और तू किज़ाब का बेटा है, और जिसने तुझे हाकिम बनाया वह भी किज़ाब है। और हुसैन सच्चे हैं, उनके बाप सच्चे हैं और उनके नाना सच्चे हैं। तुम लोग औलादे रसूल के कत्ल के मुजरिम हो और बातें सिद्दीकीन जैसी करते हो। इब्न ज़ियाद ने कहा कि इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इब्न अफीफ की कौम के बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनको छुड़ा लिया, मगर जालिम इब्न ज़ियाद उनका खून बहाए बगैर चैन न आया, घर से बुलवाकर उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद इब्न ज़ियाद बदनिहाद ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के सरे मुबारक को कूफा के कूचे और बाजार में फिरवाया और इस तरह अपनी बेगैरती और बेहयाई का मुजाहिरा किया। उसके बाद हजरत इमाम और उनके तमाम जानिसार शुहदाए कराम के सरों को और असीरान अहले बैत को एक जमात के साथ सिमर वगैरह की सरगर्दगी में यजीद पलीद के पास इस हालत में रवाना किया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ पाँव को जंजीरों से जकड़ दिया था और बीबियों को ऊँटों की नंगी पीठों पर बिठाया गया था। और जालिम ने हुक्म दिया कि सरों को नेज़े पर चढ़ाए हुए आबादियों से होकर गुजरना, ताकि लोगों को इबरत हो और आइंदा कोई यजीद की मुखालिफत पर आमादा ना हो। जब जमाअत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के सरे मुबारक लेकर पहली मंजिल पर एक गिरजाघर के पास रात गुजारने के लिए उतरे और राहिब ने जब शहीदों के सरों को नेज़ों पर और चंद बीबियों और बच्चों को बहालते असीरी देखा तो उसके दिल पर बहुत असर हुआ और दरियाफ्त करने पर जब उसको पूरा हाल मालूम हो गया तो उसने कहा कि माज़अल्लाह, तुम लोग कितने बुरे आदमी हो, अपने नबी की औलाद को कत्ल किए और फिर उनके बाल बच्चों को कैदी बनाए। और फिर राहिब ने उन बदबख्तों से कहा कि अगर रात भर अपने नबी की नवासी कसर हमारे पास रहने दो तो हम तुम्हें 10,000 दिरहम देंगे। वह लोग इस पर राज़ी हो गए। राहिब ने रकम अदा करके हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का सरे मुबारक लिया और अपने ख़ास कमरे में ले गया और फिर सरे अनवर, चेहरे मुबारक और मुक़द्दस जुल्फ़ों और दाढ़ी के बालों पर जो गर्दो गुबार और खून वगैरह जमा हुआ था धोया और इत्र काफूर लगाया और बड़ी ताज़ीम व तकरीम के साथ अपने सामने रखकर उसकी ज़ियारत करने लगा। खुदाए तबारक व तआला ने उसके उस अदब से राज़ी हो गया और उसने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। राहिब रोने लगा और उसकी निगाहों से पर्दा उठ गए। उसने देखा कि सरे अक़दस से
आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने ये सर मुबारक की करामत देखी तो सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़कर मुसलमान हो गया और सुबह को सर अनवर उनके हवाले कर दिया। और जब यजीद पलीद को मालूम हुआ कि असीरान करबला और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनकरीब दमिश्क में पहुंचने वाला है, तो उस पर पूरे शहर को आरास्ता करने और सबको खुशी मनाने का हुक्म दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम आए हुए थे। जब वह दमिश्क में शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सब लोग खुशी मनाते हैं और बाजे बजा रहे हैं। उन्होंने लोगों से उसकी वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि अहले इराक ने हुसैन इब्न अली की सर को यजीद के पास हदिया भेजा है। तमाम अहले शहर उसी की खुशी मना रहे हैं। हज़रत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु जो एक सहाबी रसूल से और अहले बैत से मोहब्बत करते थे, एक आह भरी और पूछा कि हजरत हुसैन का सर कौन से दरवाजे से लाएंगे। कहा कि बाबू सातों से। आपने उस तरफ तेजी से बढ़े और बड़ी दौड़ धूप के बाद अहले बैत तक पहुँचे। आपने देखा कि एक सर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक से बहुत ज़्यादा मुशाबा है, नेज़ा पर चढ़ा कर रखा गया है, जिसे देखकर आपने बेअख्तियार रो पड़े। अहले बैत में से एक ने पूछा कि तुम हम पर क्यों रो रहे हो। तो हज़रत सहल ने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो फरमाया कि मेरा नाम सकीना बिन्त हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूँ। उन्होंने फरमाया कि और मैं आपके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म फरमाइए। हज़रत सकीना ने फरमाया कि मेरे वालिद के सरे अनवर को सबसे आगे करा दीजिए ताकि लोग उधर मुतवज्जा हो जाए और हमसे दूर रहें। हज़रत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 400 दिरहम देकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को सबसे आगे करा दिया। इस वाक़या से मालूम हुआ कि मुहर्रम के दिनों में बाजी बजाना हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन यजीदियों की सुन्नत है, उन यजीदियों का तरीका है। आपके मुहिब्बीन का घर तो मातम कदा बना हुआ था, उनके यहाँ इस मौका पर बाजा बजने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता इमाम की शहादत की खुशी में यजीदियों ने ढोल और बाजे बजाया था, मगर अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के दावेदार गाने बजाते हैं, बाजा बजाते हैं और खुदाए ताला उन्हें समझ अता फरमाए और यजीदियों की सुन्नत पर अमल करने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और आने वाले ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल RA ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।